Uh, Today's video is around how to construct an ionic equation. In CI, we have been asked to write down two type of equation. Number one is your balanced chemical equation, and number two, they ask us to write down the ionic equation. So ionic equation is being derived from the chemical equation only, but this shows only the ions and this equation is also balanced and it just comprises of ions. Like for example, an ionic equation can be H positive ion aqueous combines with OH negative ion aqueous to give you water. So this type of an equation where the ions are involved and ions are shown in the balanced form, then that equation is known as ionic equation. There are certain rules to construct the ionic equation. So we'll be talking about those rules to construct the ionic equation. Now, for example, I have a chemical equation, which is basically NaOH reacts with HCl to give you NaCl and to give you water, right? Now, the rule number one is that I need to see that this equation of mine, is it balanced or not? I need to balance this equation. Okay, I need to balance this equation, this chemical equation, right? Now, after balancing, I can see that this equation of mine is balanced. So I need not balance it any further. Okay, this is already balanced. Fine. Now the step number two, that I have to write down the state symbols with each compound or each substance mentioned in my chemical equation. Okay. Now, for example, I know all the acids are aqueous, all the alkalis are soluble, and we can write down the state symbol with them, aqueous. So we normally write down aqueous with those compounds which are soluble in water. So acid and alkali are the two categories which are soluble in water. Then we know that the soluble salts, we have the list of soluble salt. And in my previous video, I've made on the preparation salt. There I have talked about which salts are soluble and which are insoluble, right? So I know the soluble salt will be given a state symbol that's aqueous because they're soluble in water. And the insoluble salt, because they are not soluble in water, there are few of them, so they will be given a state symbol that's solid. We know certain gases, okay, the gases will be given a state symbol gas there, right? So a bases, we know the bases which are not alkalis, so they will be given a state symbol solid there. इस कैटेगरी के बेसिस पर हम स्टेट सिंबल्स देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर because this is an alkali, so I'll be writing down the state symbol aqueous here. This is an acid, so I'll be writing down the state symbol aqueous here. Now, sodium chloride is a soluble salt. Why am I saying it's a soluble salt? Because all the chloride except for silver chloride, mercury chloride, and the lead chloride, only these chloride are exempted from the solubility. They are insoluble salts. So my sodium chloride doesn't come under this category. So sodium chloride, I'll be writing aqueous again. Now, water is water at the room temperature, pressure. With water, we always write down the state symbol liquid because it is in the liquid form. इसके साथ aqueous हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि aqueous हम उनके साथ लिखते हैं जो कि water soluble है. Water itself is water. So how can we write aqueous? So we will be writing the state symbol liquid with this water. Now we have a balanced equation. We have written down the state symbols. Now what we'll be doing next? Next we will be in the step 3. We will be dividing all the ionic substances, जितने भी ionic substances हैं, जितने भी aqueous substances हैं, we will be writing them down in the form of the ions. We'll divide them into the ions. Like for example, the sodium hydroxide, I'll break down and I'll write down as Na aqueous and OH negative aqueous. So sodium hydroxide I divide into its ions, Na ions and OH ions. Okay. Similarly, I'll be splitting HCl into H positive aqueous ions and I'll be writing down Cl aqueous ions. Okay. So I've split up the soluble ones into an ion, right? Then followed by sodium chloride is also aqueous. So I'll write down Na aqueous and I'll be having chloride aqueous ions from the sodium chloride aqueous because these when they dissolve in water, they disintegrate into the ions. So जितने भी aqueous substances हैं,
क्योंकि पानी में जाने के बाद ये अपने आयनिक फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो मैं उनको कन्वर्ट करके आयन फॉर्म में। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वस सब्सटेंसेस। गैसेस एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड, उनको हम डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको आयन फॉर्म में नहीं करेंगे, तो दे विल बी रिटन एज इट इज along with the state symbol. So water is the one which I am not going to split up into its ion, and it will be written as it is. तो जो भी आपके अदर देन aqueous होते हैं उनको आप उसी फॉर्म में लिखेंगे और उनको आप डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे into the ion form, right? So this is the third step. So this is liquid, so this is written as it is. Now comes the next step. In the next step, what we do is we cancel out the commons. We will cancel out the common ions, the ions which are common on both sides, right? उसके बाद हम क्या करते हैं, whichever the ions we are the common side, दोनों side पे हैं, उनको हम cancel out करते हैं. Now let's have a look. Sodium is on the side of the reactant, और reactant side पे भी है और sodium product side पे भी है, ठीक है? Similarly, we have chloride on the reactant side and we have chloride on the product side. Any other ion which is common on both the side? No. These were the only ions which are common on both the sides, so we cancel them down. Now what we will be doing next, we will be writing down the remaining components of this equation. So I'll be writing down, I am left with basically OH negative ion, which is in the aqueous form. I am left with H positive ion, which is in the aqueous form, and I am left with water, which is in the liquid form. So the remaining part is basically your ionic equation. जब आपने उसको cancel out कर दिया, तो ये बाकी की equation जो होगी along with the state symbols, along with it's also balanced, ये तो ये balance form में, तो ये equation आपकी ionic equation होगी. I hope I'm clear. Now I'll be doing one more example over here. I'll be doing the same step-by-step process for one more equation. Okay. Now I have zinc reacting with copper sulfate, giving you zinc sulfate and copper. Now, step number one, I need to see whether this is balanced or not. Yes, it is a balanced equation, right? It is the balanced equation, right? Then what I'll be doing, I will be splitting, I'll be writing the state symbols, okay? I'll be writing the state symbols on the basis of my knowledge, give which salts are soluble, whether we have an acid and alkali, and whatever the knowledge we have, right? So I'm writing down the state symbol. I know metals exist in the solid state only, so I'll write down solid. Copper sulfate is a salt. I know the soluble and insoluble salts, so all the sulfates are soluble except for, exception for the sulfate salts are uh, that is barium sulfate, you have lead sulfate, you have calcium sulfate. These are exceptions which I'll be writing down in the solid salts. ठीक है, तो ये वाले जो salts है सल्फेट की, ये हैं आपके insoluble. तो अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या है, ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, तो ये आ गया एक्वस. सिमिलरली जिंक सल्फेट भी इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, तो ये भी एक्वस होगा, ये भी सॉल्वेंट वाटर होगा. एंड कॉपर इज अगेन माय मेटल, सो आई विल बी राइटिंग डाउन द सॉलिड, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल बी डूइंग इज, इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी, whatever the aqueous substances I have, whatever the aqueous substances I have, I will split them up into their ions, split them into ions. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, आई इनको स्प्लिट अप करूंगी. तो जिंक तो सॉलिड है, तो जिंक सॉलिड एज इट इज आएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्वस वालों को स्प्लिट करना है. अब कॉपर जो है, मुझे उसको चार्ज पता है, इट हैज अ चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको आयन के फॉर्म में लिखूंगी. सो आई विल बी राइटिंग इट डाउन एज कॉपर आयंस aqueous. Then I'll be writing down the sulfate ions, 2 negative charge, aqueous with the state symbol aqueous. Similarly, मुझे पता है कि सल्फेट 2 नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली जिंक जो होगा 2 प्लस होगा. ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट अप करके उसी आयन फॉर्म में लिख लूंगी. आई राइट डाउन जिंक आयंस aqueous and sulfate ions, they again are going to be aqueous. Or along with that, we have the another component on the product side, that's copper, and we are not going to split because हमें सिर्फ aqueous को split करना है, gases, liquid and solids को हम as it is लिख देते हैं. Now comes the next step. The next step was about the cancellation of the spectator ions. ठीक है, we will cancel out
the ions which remain same on both sides, right? Which remains same on both side. Both side means on the reactant side as well as the product side. We normally call them spectator ions. We call them spectator ions. So what I'll be doing next, I will be cancelling out the spectator ions. So copper is on this side as well, and copper is on this side. But we can see this is not the same. This has a 2+ charge, and here we have a copper solid. तो ये कॉमनैलिटी नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, तो कॉपर को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जिंक को कैंसिल करेंगे, जिंक को भी नहीं कैंसिल करेंगे, ये जिंक सॉलिड स्टेट में और यहाँ जिंक आयन फॉर्म में, तो ये कॉमनैलिटी में डिफरेंस है। तो एक मेटल फॉर्म में है, एक एटम फॉर्म में है, और दूसरा जो है वो आपका आयन फॉर्म में है। तो ये सेम नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको कैंसिल नहीं करूंगी। नाउ द स्पीशीज व्हिच आई एम गोइंग टू कैंसिल आउट इज बेसिकली माय सल्फेट. Look here, I have a sulfate here and I have a sulfate here. There is no difference between the two. So this is same on both the sides. So I'll be cancelling it out. Okay, that is my step number 4. Now, after cancelling out the spectator ions are those where which जिनके अंदर कोई change नहीं हो रहा from reactant side towards the product side. Spectator ions को cancel out करने के बाद जितनी भी remaining components of the equation है उनको हम नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो आई विल बी राइटिंग जिंक इन द सॉलिड फॉर्म, प्लस आई विल बी हैविंग कॉपर आयंस इन द aqueous form, arrow because sulfate cancel out हो गया, so we'll be having zinc aqueous form. I'm just copying down from the above equation and copper from the. So basically this is my remaining part of the equation after cancelling out the spectator ions. So this is basically my ionic equation. This is my ionic equation, right? So अब आयनिक इक्वेशन आपके लिए कहाँ पर हेल्प आउट होती है? आयनिक इक्वेशन से आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका रिड्यूस हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि आयनिक इक्वेशन में आपके पास आयंस होते हैं। तो आयंस कैन आइदर गेन इलेक्ट्रॉन और दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स रिएक्शंस the substance which gain electron, the substance, we have a mnemonic for that, the substance which gain electron is said to be reduced, and the substance which lose electron is said to be oxidized. तो हम आयनिक इक्वेशन की हेल्प से इजीली बता सकते हैं अपने रिडॉक्स प्रोसेसेस के बारे में, ये कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ और कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। अच्छा, ये एक और चीज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर रही हूँ। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ रिएक्शन विच इज बेसिकली माय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction, it is my single displacement reaction, जहां पर more reactive metal is displacing the less reactive metal from its salt solution. ये displace करके zinc sulfate और copper. Always remember that all the type of displacement reactions are basically your redox reaction. जितने भी आपके displacement reaction होते हैं वो सारे के सारे redox reaction होते हैं। तो ionic equation लिखने के बाद I'm just going a step ahead, ठीक है, कि आपसे एग्जामिनर सीआई के क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पहले तो वो आपसे कहते हैं कि ओके फाइंड राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। अब नाउ लेट्स सी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, आयनिक इक्वेशन हमें बनानी है आगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। अब जिंक जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन, बिकॉज इट्स इन द एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है उसके पास जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके ऊपर चार्ज 0। सिमिलरली कॉपर इज ऑल्सो मेटल, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर भी चार्ज 0 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जिंक जो है वो 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। दैट मीन्स जितने उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे सेम जो थे, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट सेम, दैट इज व्हाई इट हैज अ 2+ चार्ज है। इसके पास 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन्स, इट हैज मोर। दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस while it was converting from zinc to zinc ion, it has lost its electron. यहाँ पर जो भी एक चीज और याद रखिए कि आयंस जो भी बनते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। अगर मेरे पास प्रोटॉन्स या 2+ चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेड आउट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन,
ठीक है, तो यहाँ पर it will be there will be loss of electron, and because there's a loss of electron, so this process will be considered as oxidation process. Now when we talk about copper changing into copper ion changing into copper, ये वाला जो process है हमारा copper, तो देखिए यहाँ पर copper ion जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मींस इसके पास दो प्रोटॉन ज्यादा थे. इट हैज मोर प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट वाज एन आयन. आयन क्या होते हैं? आयंस आर द सब्सटेंसेस which have um, unequal which have unequal number of protons and electrons, तभी वो आयन फॉर्म हुए. अगर कोई सब्सटेंस इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब है वो इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर कोई सब्सटेंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब इट हैज मोर ऑफ प्रोटॉन्स. और ये मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे आए? बिकॉज ड्यूरिंग इट हैज ट्रांसफर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है. तो कॉपर के पास दो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके मतलब उसने ड्यूरिंग और ठीक है, कॉपर टू आयंस ने, अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है जीरो है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, तभी उसके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है. तो इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस इसने क्या किया? इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन. पहले इसके पास दो प्रोटॉन ज्यादा थे, अब इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए उसका नंबर जीरो है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल रिडक्शन. तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस विच इज reduction. So that means copper ions has been reduced to copper. During the process it has gained 2 electron. तो ionic equation के बाद they go a step ahead. अच्छा ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सिखाया हाउ टू राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन, और दूसरा फिर मैंने एक स्टेप आगे आपको बताया कि किस तरह से आयनिक इक्वेशन की एप्लीकेशन या क्वेश्चन में फर्दर नेक्स्ट स्टेप में सवाल पूछा जाता है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स के एस्पेक्ट से कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ और कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ. तो बिकॉज यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, और आयंस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू सम अदर सब्सटेंसेस, आइदर द मेटल, और फर्दर उनका लॉस से गेन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके बेसिस पे लॉस एंड गेन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन फर्दर आइडेंटिफाई which part has been oxidized and which part has been reduced. ठीक है. अच्छा, going ahead now let's have a simple shortcut methods. एक हम करते हैं shortcut methods. एक चीज याद रखिए कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, वॉट एवर द यू हैव द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन, चाहे HCl रिएक्टिंग विद KOH हो, राइट, तो आपको देगा ये KCl प्लस इट इज गोइंग टू गिव यू H2O. चाहे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद NaOH हो, ठीक है, it is going to give you the product that is Na2SO4 plus H2O. और कोई भी एसिड और कोई भी एल्कली का रिएक्शन हो, ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है where you have a nitric acid reacting with ammonium hydroxide and you are forming ammonium nitrate, right, and you are forming water. सही है. ये हमारे एग्जांपल्स क्या हैं? These are the examples of my neutralization reaction where an acid and an alkali are neutralizing themselves to form what they are actually forming, what they are forming salts. ये कैटेगरी पूरी जो है दिस इज सॉल्ट, और दे आर फॉर्मिंग what they are forming water. जब भी आप एक किसी भी न्यूट्रलाइजेशन, आपसे अगर एग्जामिनर आयनिक इक्वेशन लिखने को कह रहा है, तो आप सिर्फ आयनिक इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को देखिए, क्या वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या वहां पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है. अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, irrespective of which acid and which alkali you are using, हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की सिर्फ एक ही आयनिक इक्वेशन बनती है, that is this is going to be the ionic equation for a neutralization reaction. Hydrogen ion, क्योंकि हमें ionic equation के साथ state symbols लिखने होते हैं. Hydrogen ion comes actually from an acid, क्योंकि acid they give hydrogen ion in aqueous solution, so H positive is depicting your acid. OH ion always come from an alkali, because हम alkali को define करते हैं, they are the substance which give you OH ion इन एन aqueous solution. ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, H पॉजिटिव एंड OH जो है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है.
और साथ में आपको वाटर मिलता है। तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपके पास है तो आप आंख बंद करके ये उसकी आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है। और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दोस 4 स्टेप्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियसली, आप सिर्फ ये इक्वेशन लिख देंगे अलोंग विद द स्टेट सिंबल्स, यू विल गेट द 1 मार्क। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको प्रॉपरली 4 स्टेप्स में वर्कआउट करना हो। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, विदाउट वर्किंग इट आउट राइट इट डाउन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जब भी आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, या आपके पास पीपीटी आ रहे हैं, जो कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पीपीटीज देखे थे। कौन से पीपीटी देखे थे? जब आप एक्वस एनओएच की फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हैं या एक्सेस डाल रहे हैं, या फिर एक्वस अमोनिया की फ्लूइड ड्रॉप्स डाल रहे हैं या एक्सेस डाल रहे हैं, तो आपको मुख्तलिफ पीपीटीज नजर आते हैं। लाइक कैल्शियम आपको प्रेसिपिटेट देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सिमिलरली जिंक आपको प्रेसिपिटेट देगा जिंक हाइड्रोक्साइड का। आयरन 2 आपको प्रेसिपिटेट देगा, आयरन 2 का जो सॉल्ट है वो आपको प्रेसिपिटेट देगा आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का। तो हमें ये पता है कि जितने भी प्रेसिपिटेट्स आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में बन रहे हैं वो उनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, FeOH होल ट्वाइस। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का सोल्यूशन है तो हमें कॉपर का ब्लू पीपीटी देगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं, और प्रेसिपिटेट्स जब भी हम एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्वस NaOH और एक्सपोनेंट के साथ, तो ये हमारे हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ठीक है। सही, एक कैटेगरी तो ये है। सही, प्रेसिपिटेट्स की जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी कैटेगरी वो है जहां पर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इफ आई एम रिएक्टिंग सिल्वर नाइट्रेट with let's say NaCl and I'm getting AgCl and I'm getting NaNO3, सही है। तो इसके अंदर मुझे मालूम है ये मेरा insoluble salt है, दिस इज माय insoluble salt, राइट। क्योंकि ये मेरे एक्वस हैं, ये एक्वस हैं और ये एक्वस हैं। सिमिलरली अनदर एग्जांपल वेयर द बेरियम सल्फेट इज बीइंग फॉर्म, जहां पर मेरे पास बेरियम सल्फेट बन रहा है, और बेरियम सल्फेट के लिए मैं लूंगी बेरियम नाइट्रेट, क्योंकि एनाइन के साथ हमेशा नाइट्रेट लीजिए, क्योंकि हमें हमेशा सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए नॉट टू प्रिपेयर द इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ सॉल्ट प्रिपरेशन वाली वीडियो के अंदर। तो सल्फेट के लिए मैं यहाँ पर पोटेशियम ग्रुप 1 का सल्फेट ले लूंगी। तो ये जब रिएक्ट करेंगे दोनों aqueous substances, I'll be getting one solid and I'll be getting another aqueous which is going to be potassium nitrate, ठीक है। तो जब भी आपका या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या फिर आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है, किसी भी इक्वेशन में आप आइडेंटिफाई करें क्या ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन डिमांड कर रहा है या इनसॉल्युबल की डिमांड कर रहा है। इससे पहले स्लाइड पे मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन की बताई थी, तो न्यूट्रलाइजेशन का 1 लाइनर शॉर्टकट बताया था कि जैसे आप आइडेंटिफाई करें तो ये आयनिक इक्वेशन लिखें। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कि जैसे ही आपको पता चले कि ये आयनिक इक्वेशन मांग रहा है प्रेसिपिटेट की, जो फॉर्म हो रहा है in the qualitative analysis, reaction with NaOH और reaction with aqueous ammonia, या फिर वो डिमांड कर रहा है ऐसी इक्वेशन की जहां मेरा इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस सिनेरियो में हमारा जो शॉर्टकट है वो ये है कि हम प्रेसिपिटेट यहाँ पर लिखेंगे, जो भी प्रेसिपिटेट है आपके पास, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने के लिए हमारे कौन से आयंस हमने वो रिक्वायर्ड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए मेरे पास आयंस जो मुझे चाहिए ऑन द रिएक्टेंट साइड, आई रिक्वायर कैल्शियम आयंस एंड आई रिक्वायर हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। और मुझे पता है कि जब भी मैं सॉलिड, मेरे पास प्रेसिपिटेट आ रहा है या इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, तो मेरे पास दोनों रिएक्टेंट्स जो होंगे वो एक्वस होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनके साथ इसको स्प्लिट अप कर दिया इनटू द आयन फॉर्म। इसको मैंने क्या किया, जो भी मेरा प्रेसिपिटेट था, ये जो भी इंसॉल्युबल था, उसको मैंने उसके आयंस में स्प्लिट कर दिया, और उन स्प्लिटेड आयंस को मैंने रिएक्टेंट साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसको मैंने रिएक्टेंट साइड पे लिख दिया। अब ये वाला काम तो मैंने कर लिया। अब मेरे पास स्टेट सिंबल्स भी आ गए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ जो करना है वो इसको बैलेंस आउट करना है। तो इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, अदरवाइज मुझे आई विल नॉट गेट द क्रेडिट। नाउ कैल्शियम आपके पास एक ही, और हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2।
So what I'll write down here 2. So this is going to be my ionic equation whenever I come across a precipitate formation. तो precipitate अगर आपका कहीं फॉर्म हो रहा है तो ये आप precipitate के फॉर्मूले से आप उसकी डायरेक्ट ionic equation लिख सकते हैं without going any 4 step सिनेरियो. सिमिलरली अब मैं आपको आगे बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बन रहा है और आयरन 3 हाइड्रोक्साइड की एग्जामिनर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन डिमांड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्प्लिट अप करूंगी इनटू एन आयन. बिकॉज दिस इज आयरन 3, सो आई हैव आयरन 3 प्लस aqueous solution. ठीक है, कोई भी aqueous solution आयरन 3 का होगा तो उसको स्प्लिट कर दिया आयरन 3 में, और दूसरा एनाइन जो है वो मेरा OH आयन आएगा और वो भी aqueous होगा. और कितने आयंस होंगे, नाउ लेट्स बैलेंस इट. यहाँ तो एक ही आयरन 3 होगा लेकिन 3 हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, और FeOH होल थ्राइस इज गोइंग टू बी माय सॉलिड. इसी तरह से ऊपर भी लिखूंगी मैं सॉलिड. तो ये मेरी आयनिक इक्वेशन होगी जब भी आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. आई होप आई एम क्लियर. कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए जो इक्वेशन मैं लिखूंगी वो बनेगी कॉपर 2 प्लस एक्वस plus 2OH negative aqueous. तो ये shortcut method है in order to write down the ionic equation for a precipitate. Now let's move to the next part कि अगर मेरे पास कोई insoluble salt बन रहा है तो उस insoluble salt के लिए मेरा shortcut method क्या होगा. अब अगर मेरे पास similarly जैसे मैंने ऊपर बताया है कि AgCl मेरे पास solid है, तो इस AgCl को बनाने के लिए अब मेरे पास यहाँ पर मैंने insoluble salt की जब salt preparation की जो लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन किया था और बताया था कि जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो आपके दोनों रिएक्टेंट्स एक्वस होने चाहिए. तो अब जाहिर है कि यहाँ पर जो भी एक्वस होगा तो उसमें से मेरे पास Ag आयंस आएंगे, और ये क्लोराइड जो होगा उस ये भी क्लोराइड आयंस देगा. तो इसी बेसिकली इसी सॉलिड को मैंने स्प्लिट अप कर लिया इनटू इट्स आयन फॉर्म. अब उसके साथ मैंने स्टेट सिंबल लिख लिया क्योंकि मेरा जब भी सॉलिड बनता है तो मेरे रिएक्टेंट एक्वस होने चाहिए. नाउ व्हाट आई हैव टू चेक इज आई हैव टू चेक द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पर एक सिल्वर आयन ही बनाएगा, ये एक क्लोराइड, तो दिस इज गोइंग टू बी माय आयनिक इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ये मेरी आयनिक इक्वेशन भी इस तरह से. अच्छा, अब हम लेंदी मेथड से भी इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं. अगर हम लेंदी मेथड से ट्राई करते हैं इस इक्वेशन को, अगर मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट aqueous plus I have let's say NaCl aqueous, and it is going to give you AgCl solid and it's going to give you NaNO3 aqueous. ठीक है, अब हम उसको वही बेसिक 4 स्टेप्स के हिसाब से इसको डील करते हैं. तो AgNO3 जो है वो देगा आपको Ag ions aqueous. ठीक है, साथ में देगा नाइट्रेट आयन aqueous. ठीक है, ये तो सिल्वर नाइट्रेट का हो गया, दोनों आयंस आ गए. उसके बाद फिर मेरे पास है नेक्स्ट इज आई हैव सोडियम क्लोराइड के Na aqueous प्लस Cl नेगेटिव aqueous. ठीक है, इसके बाद आए मेरे पास सिल्वर क्लोराइड को मैं एज इट इज लिखूंगी, इसको स्प्लिट अप नहीं करूंगी क्योंकि ये सॉलिड है. ठीक है, मुझे सिर्फ एक्वस को स्प्लिट अप करना होता है. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सोडियम नाइट्रेट क्योंकि एक्वस है तो मैं इसको स्प्लिट अप करूंगी इनटू Na आयंस एंड इनटू नाइट्रेट आयंस. ठीक है, अब ये मैंने सबको आयन फॉर्म में और सॉलिड को एज इट इज लिख लिया. अब नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी कैंसलिंग देम आउट. अब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगी. ठीक है, तो कॉमन आयंस ऑन बोथ द साइड. तो मेरे कैंसलिंग में दिस इज नाइट्रेट आयंस. तो ठीक है, तो कैंसलिंग में मैं नाइट्रेट को कैंसिल कर दूंगी और सोडियम को कैंसिल कर दूंगी. बाकी इक्वेशन में एज इट इज लिख दूंगी. तो बाकी इक्वेशन होगी Ag aqueous when reacting with Cl aqueous is going to give me sodium chloride सॉलिड. क्या ये इक्वेशन वो नहीं है जो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताया था? तो या तो आप इस तरह से कर लीजिए या आप ये याद रखिए कि मेरे पास ये सॉल्ट बन रहा है तो इसके जो रिएक्टेंट साइड पे होंगे वो इसके सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे एंड दे बोथ नीड टू बी एक्वस. सो दिस इज गोइंग टू बी माय शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग डाउन द आयनिक इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने आपको 3 शॉर्टकट्स बता दिए राइटिंग द आयनिक इक्वेशन. नंबर 1, व्हेनेवर वी हैव अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिस इज द शॉर्टकट. आंख बंद करके ये इक्वेशन लिख दो. ठीक है, बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमेशा दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म. अगर ठीक है, अगर इसको आप बैलेंस भी करके स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे आपके पास यही इक्वेशन आएगी हमेशा हर बार आयनिक इक्वेशन की. अच्छा, अब इसके बाद दूसरा शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया था वो है कि अगर आपके पास प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो जो प्रेसिपिटेट्स हैं उन जो जिस
सब्सटेंस के दे आर कंप्राइज्ड ऑफ, उसके आयंस आप लिख लीजिए और उनके नीचे स्टेट सिंबल एक्वस लिख दीजिए। फिर इवेंचुअली इन द एंड यू बैलेंस आउट द इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये 2OH था तो आपने टू, यहाँ पर 2 था विद इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH was 2 so you write down 2। यहाँ OH3 था, FeOH whole thrice था तो आपने 3OH के साथ लिख दिया। यहाँ OH whole twice है तो आपने 2 लिख दिया। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लें, ये आपकी शॉर्टकट। इसी तरह से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसको इसके आयन फॉर्म में कर दिया। रिएक्टेंट्स हमेशा एक्वस होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉलिड होता है। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग हियर, एक और कर लेते हैं जल्दी से। बेरियम सल्फेट आपके पास सॉलिड है, तो इसकी आयनिक इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगी तो बेरियम आयंस से फॉर्म हो रहा है ये कंपाउंड। तो बेरियम आयंस हैज अ चार्ज ऑफ 2+, एक्वस स्टेट में होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स हमेशा एक्वस होंगे। सल्फेट आयंस 2 नेगेटिव और इसका स्टेट सिंबल एक्वस होगा। दिस इज सॉलिड, सो दिस इज गोइंग टू बी माय आयनिक इक्वेशन व्हेनेवर आई विल हैव एन इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बीइंग फॉर्म। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखना कि आयनिक इक्वेशन ज्यादातर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई या डिड्यूस करने के लिए यूज होती है। तो हम ज्यादातर इसको आयनिक इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि आपकी 4 डेफिनेशंस होती हैं रिडॉक्स की: गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर wherever it's gaining an electron, it's being reduced, substance being reduced, wherever they're losing an electron, substance is being oxidized। और आपकी जो चौथी डेफिनेशन होती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे आप नहीं करेंगे, जब भी आपसे आयनिक इक्वेशन पूछेगा एग्जामिनर तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रोसेसेस को के रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।